Good morning. Good morning, sir. Welcome you all, friends. Before we start the meeting, request everyone to please raise for the institute motto along with national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। भारत माता की Good morning again, friend. I welcome you all in today's seminar. Friends, आज का जो विषय है ये सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग इफिशियंसी। ऐसे तो हर सीए इफिशियंट है, लेकिन इफिशियंट को सुपर इफिशियंट कैसे बनाना है ये हमारे आज के स्पीकर रामनाथ जी अय्यर बताएंगे। क्योंकि ये वो एक ऐसे शख्स हैं जिनके शब्दों में हो मिठास तो दिलों पर असर होता है, व्यवहार में हो विनम्रता तो हर रिश्ता अमर होता है। ऐसे ही कला के ज्ञाता हमारे आज के वक्ता जो सिखाएंगे हमें सॉफ्ट स्किल्स का असली सफर क्या होता है। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए नाउ आई रिक्वेस्ट सीए अंकुश गुप्ता टू प्लीज गिव ए brief profile of our speaker. Please come. Very good morning to everyone. The request, humble request, if the last benchers can please come ahead.
because the room is small and the late comers will then sit behind. So I just request if you all can please come ahead and occupy the seats. There are a lot of seats which are empty ahead. Thank you, thank you, thank you. And you all know very well that JB Nagar is number 1 in study circle, be it technical, be it anything, and be it social service. So today our dynamic convener along with his team has organized a blood donation camp with association with Tata, and of course other health checkups are also there. So I humbly request on behalf of JP Nagar Study Circle and convener and his team, I humbly request everyone to whoever are eligible for blood donation, please do donate blood, and please take the benefit of health checkup also. Thank you. So now I'll give a brief introduction of our very young dynamic speaker of today. He is CA Ramanath Iyer. He is a chartered accountant, of course, but also a motivational speaker. And he has a journey of empowering minds, which is very much required for chartered accountancy. For the past 27 years, he has been conducting Iyer commerce classes. We all are very much aware of Iyer commerce classes, sharing the future of countless students. He ventured into the world of mind control, merging his rich academic experience with groundbreaking techniques to unlock the potential within each individual. Through years of one-to-one coaching and motivational speaking, CA Ramanath Iyer has touched the lives of thousands of inspiring CA students and allowed them to raise above fear, and embrace their true potential and lead them with confidence. So with this very short and brief introduction, I request everyone to please welcome him with a huge round of applause. And before handing him the dais and mic, we'll be presenting him with a memento as a token of love. And I would also request CA Jayesh Thakkar and CA Now I request our past convener CA Jayesh Bhai Thakkar, past convener CA Krishna Kumar Ji Kedia, and our welcome our RCM Pinky Kedia and our chief guest Mrs. Ketan Sayya. I request all of them to please come to the dais to hand over the All the token. persons to please come and give a token of appreciation to our speaker. Now over to Ayyar sir.
Good morning, everyone. Respected कैलाश जी किधर है? घूम के नहीं चले गए. And other dignitaries of this JB Nagar CSL circle. And my dear CA friends. बहुत साल पहले I was in a coaching lab. I teach. एक दिन सडनली मेरा आवाज चला गया. I could not speak. I went to hospital in Andheri. एक ENT specialist को दिखाया. He checked me, my throat and all. और बाद में बोला कि I have developed something called chronic laryngitis. तो मैं बोला ये क्या होता है? तो बोला कि ये तो रबर बैंड. और रबर बैंड लेके बोला कि ये जो तुम्हारा वोकल कॉर्ड है, इट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल लाइक रबर बैंड. लेकिन तुम्हारा वोकल कॉर्ड ऐसा हाथ दिखा है, इतना रफ हो गया है, तो ये ठीक करना पड़ेगा. तो बोला कैसा ठीक होएगा? तो बोला there is only one solution for that, and that is voice rest. तो मैं पूछा कितना दिन के लिए? तो बोला मिनिमम 1 ईयर, बात नहीं करने का. मेरा तभी नया शादी हुआ था. सबका शादी नया होता है, याद रखना. और वो बात नहीं करने का है, ऐसा कैसे हो सकता है? And at that time, I did one course called Silva Mind Control at Taj, BT. और बाद में 3-4 साल के बाद I did one more course called Neuro Linguistic Programming. अरे दोनों कोर्स करने के बाद लाइफ चेंज हो गया. एक आवाज इंप्रूव हो गया, हेल्थ अच्छा हो गया, पैसा आने लगा, रिलेशनशिप इंप्रूव होने लगा. हर बाद में जिंदगी में जो कामनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वो मिलने चालू हो गया. ऐसा मन में लगा कि वो जो आवाज बैठा, इसकी वजह से बैठा था कि मैं वो जो कोर्स करूं, ऐसा मेरे मन में लगने लगा. आज हम लोग 1 घंटे में यही देखने वाले हैं कि कोर्स में मैंने क्या क्या सीखा. वो कोर्स 4 दिन का था, 10 to 5 एवरी डे. 1 घंटा अपने पास, जितना हो सके उतना अपन मसाला लेके जाए. क्या तक क्लियर? न्यूरो लिंग्विस्टिक का मतलब, न्यूरो का मतलब ब्रेन, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज. By using the brain and the language, you are programming your full body and the mind for calmness, success and happiness. थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि मैं चिल्ला रहा हूँ क्या? मेरे को लग रहा है मैं चिल्ला रहा हूँ. ठीक है ना? कट कर देना. That is neuro linguistic and programming. उसका हम प्रोग्राम कर रहे हैं. Normally, just as जब डॉक्टर के पास जाएगा तो एक स्टेथोस्कोप लगाते हैं और अपना हार्ट बीट गिनते हो. Just as a heartbeat can be measured on the basis of certain beats per minute, similarly our brain functioning can also be measured on the basis of certain cycles per second. अपना ब्रेन कितना फंक्शन करता है by a machine called EEG. गूगल में बात उसका फुल फॉर्म देख लेना. उसमें समझिए कि our brain functioning can be measured on the basis of certain cycles per second. Normally जब एक बच्चा पैदा होता है, the brain, एक नया लड़का है, नया बच्चा पैदा हुआ है, so 0 to 3 years तक they can function at about 3 cycles per second. ये भी डर लग रहा, मैं गिर रहा हूँ क्या? अंदर सकता है, दूर कर दे उसको. जो है चल मैं आगे देता हूँ. So they are working at 3 cycles per second. मतलब समझे बच्चा पैदा हुआ, उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. उसको इतना अच्छा रहता है कि रोएगा तो ही दूध मिलेगा, नहीं रोएगा तो दूध नहीं मिलेगा. इतना उसको अच्छा रहता है. But he is not supposed to know who is going to be the next prime minister of India. ये उसको सोचने की जरूरत नहीं है. जब बच्चा लोग बड़ा होता है, सब 3 to 7 years में भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहेगा, सेकंड स्टैंडर्ड में रहेगा. They are functioning at around 6 to 7 cycles per second. They are able to understand colors, blue, red, green, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. इतना सीखने चालू हो जाता है वो. ये उम्र में इतना सीख लेता है वो कि कितना चिल्लाएगा तो मम्मी मानेगी और कितना ज्यादा चिल्लाएगा तो फटका मिलेगा. इतना अच्छा रहता है उसको
किसको मैनिपुलेट करने का, पापा को कितना मैनिपुलेट करने का और मम्मी को कितना मैनिपुलेट करने का, he is able to understand, but still he is not supposed to know who is going to be the next prime minister of India, how to eliminate terrorism from the world, how to control Trump, ये सब उसको सुनने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा और बड़ा होता है 7 to 14 years, मे बी 8 और 9 स्टैंड पकड़ो ना, उसको गेम्स के बारे में इंटरेस्ट चालू हो जाता है। he understands cricket, he understands टेनिस, टेनिस में कैसे पढ़ते हैं, फुटबॉल कर देखने चालू हो जाता है। एट द सेम स्कूल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी ये सब सीखने चालू हो जाता है। But even at this stage, he is not supposed to know who is going to be the next prime minister of India. जरूरत नहीं, और बाद में अडल्ट हो जाता है। अडल्ट में नॉर्मली यू आर फंक्शनिंग एट अराउंड 21 साइकिल्स पर सेकंड। अभी मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोग सुन रहे हो, आई एम फंक्शनिंग एट 21 साइकिल्स पर सेकंड, तुम लोग भी सुन रहे हो 21 साइकिल्स पर सेकंड, वी आर ऑल वर्किंग एट अराउंड 21 साइकिल्स पर सेकंड। 21 साइकिल्स का मतलब अपना माइंड 10 जगह पे घूम रहा है। वी आर एबल टू मल्टीटास्किंग। यहाँ बैठे हो, नजर मेरे सामने है, एक दिमाग में जाने क्या क्या घूमता रहेगा, कुछ रिटर्न फाइल करने रहेगा, खून देना कि नहीं देना है, ब्रेकफास्ट में इडली की डोसा कैसा रहेगा, और भी उनका सोचता रहेगा। 10 मिनट हो गया, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी कुछ समझेगा क्या, ऐसे न जाने दिमाग क्या कहाँ घूमता रहेगा। और बहुत कभी कभी आप गुस्सा हो जाते हैं। 26 साइकिल पर सेकंड, समझ में नहीं आप क्या कर रहे हैं, पागल हो जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में मस्त कार में बैठा था, सिग्नल में पीछे से कार के ठोका, क्या हो गया मालूम नहीं, बाहर उतरा, उस आदमी को मारा, आदमी मर गया, सिद्धू जेल में गया। अभी कन्विक्शन हुआ, अभी अंदर है कि बाहर है मालूम नहीं, बाहर आ गया। तो मेरे उस समय क्या हो गया, पागलपन चढ़ गया था। लेकिन लॉ में पागलपन का कोई इफेक्ट नहीं, सब तो सब लोग पागल हो गए हैं। ये एक कॉन्सेप्ट हो। ये अपना ब्रेन आईने में दिखेगा नहीं, मरने के बाद ऊपर से दिखेगा। 2 साइड्स ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन बोलते हैं उसको। लेफ्ट साइड राइट साइड, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंख है, जैसे भगवान ने अपने अंदर 2 साइड्स ऑफ द ब्रेन दिए हैं। लेफ्ट ब्रेन का क्या क्या फीचर्स है? लेफ्ट ब्रेन इज कॉल्ड लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? You are analyzing it and then goes back and make giving you solution. लॉजिकल ब्रेन रीजनिंग है, हाँ, तर्क के आधार पर लॉजिक है। लॉजिकल मतलब थोड़ा सीक्वेंशियल है, हम जो भी करते हैं उसमें लॉजिक है। हम तो घर पे सिखाया है कि सुबह उठने का, वॉशरूम जाने का, ब्रश करने का, फिर स्नान करने का, फिर ब्रेकफास्ट करने का, पहले ब्रेकफास्ट करने का, बाद में स्नान करने का, और बाद में शू पहनने का, बाद में हम लोग 8:53 का ट्रेन पकड़ते हैं या कार में बैठते हैं, और बाद में ट्रैफिक से बॉम्बे जाते हैं, वही कार में बैठते हैं, शाम को वापस आते हैं, सेम टाइम पे वापस आते हैं, वही सोफा में बैठते हैं और वही चैनल डेली देखते बैठते हैं, और बाद में वही बेड में जाके सोते हैं। एक लॉजिक अपनी जिंदगी में एक सीक्वेंस है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट ब्रेन। कभी भी लॉजिक टूट जाता है तो अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं, सीक्वेंस टूट जाते तो वी कैन डिस्टर्ब। वेरी सिंपल एग्जांपल देता हूं। अभी जब सब लोग ऑफिस जा रहे हो तो शू कैसे पहनते हो? पहला शू खोलता, दूसरा शू खोलता, सॉक्स खोलता, सॉक्स खोलता, पहला सॉक्स खोलता, राइट सॉक्स, बाद में लेफ्ट सॉक्स, बाद में राइट शू, बाद में लेफ्ट शू। आपका राइट सॉक्स, लेफ्ट सॉक्स, राइट शू, लेफ्ट शू। आपका सर पहला लेफ्ट सॉक्स, फिर राइट सॉक्स। कुछ फिक्स नहीं है, रोज अलग। नहीं, ऐसा नहीं होता है, चेक कर लेना, चेक कर लेना। वी हैव अ सीक्वेंस इवन फॉर वेयरिंग शू। एक बार एक सेशन ले रहा था और बीच में ब्रेक दिया, और ब्रेक के पहले सबको बोला कि एक काम करो, अपना शू उतारो और बाद में उल्टा पहनो। अगर जिंदगी में डेली राइट शू पहनता रहेगा, बाद में लेफ्ट पहनता रहेगा, आप 1 मिनट के लिए काम करो, उतार के लेफ्ट पहले पहनो और राइट बाद में पहनो।
अब बाद में ब्रेक दे दिया, अब तो कैमरा में देख रहा था, पर बाहर जाने के बाद बहुत लोग अपना शू उतार रहे हैं और बाद में राइट शू वापस पहनते हैं, लेफ्ट शू पहनते हैं, तो मंदिर का हाँ अभी ठीक हो गया यार, पर किर चल रहा है कि कुछ तो मेरी जिंदगी में गलत चल रहा है। माइंड ऐसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड कैलकुलेटिव ब्रेन। 2 + 2 4 बचपन में सिखाया, रिकॉर्ड इन लेफ्ट ब्रेन। फिर 50 साल के बाद 2 + 2 कितना लेफ्ट ब्रेन से निकाल के आंसर देते हैं। हमारे विषय में सीखते हैं ट्रांसफर एवरी आइटम फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट। कभी कभी इसकी सीए के कोर्स में सिखा देगा। आज हमें पूछेगा तो अपन वही स्टेप्स बोलते, क्यों मालूम है, जब ब्रेन में रिकॉर्ड हुआ रहता है। एंड इट्स कॉल्ड कैलकुलेटिव ब्रेन। बहुत कैलकुलेट करते हैं, हमें भी कैलकुलेट करते हैं कि शेयर मार्केट बढ़ेगा तो अपनी पैसा बढ़ाना चाहिए, घटेगा तो तकलीफ हो जाता है। लोग बोलते हैं पैसा कमाना चाहिए, वो भी अपने दिमाग में बैठेगा है। अपना जो मेमोरी है ना, मेमोरी वो लेफ्ट ब्रेन में स्टोर है। जो भी अपन पढ़ाई करते हैं लेफ्ट ब्रेन में स्टोर होता है। अगर अपने घर पे बच्चा पढ़ता रहेगा, आप समझे एग्जाम उसको याद आना चाहिए, कभी भी भूल जाते हैं ना, तो लेफ्ट साइड में थोड़ा ऊपर देखिए, ब्रेन इधर है, मेमोरी इधर तो है। तुम्हारा लेफ्ट ब्रेन ये बात याद रखता है, तो याद देखे तो इसकी तरह से याद रखते हैं। तो लेफ्ट साइड में से लिखे थोड़ा ऊपर देख के लेफ्ट में, उसको सब आएंगे। ये प्रैक्टिस अपने घर के बच्चों को करा, पढ़ेगा तो ही याद आएगा। मैजिक शो नहीं है, बाजू वाला पढ़ा और मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, ऐसा समझने में मैजिक शो नहीं कर रहा हूँ। हवाई लोग कैलकुलेटिव ब्रेन कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट ब्रेन अंडरस्टैंड वर्ड्स। लेफ्ट टू राइट लिखते 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 जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वो सब लेफ्ट ब्रेन का फिनोमेना है। एंड व्हाटएवर वी एक्सपीरियंस थ्रू 5 सेंसेस, everything is recorded in the left brain. Whatever we see, whatever we smell, whatever we taste, whatever we touch, whatever we hear gets recorded in the left brain, sometimes permanently. छोटा बच्चा है, माँ मुंह में आती है, इसको प्रोटीन और विटामिन बहुत खिलाना चाहिए। पिछले 4 वर्ष का बच्चा उसको करेला खिलाते हैं, कोई बोला करेला इज गुड फॉर हेल्थ, डायबिटीज नहीं आएगा इसको। माँ में मुंह लगे करेला खिलाते हैं, इतना कड़वा लगता है उसके टंग में, टेस्ट में, और रोता है कि मेरे को ये क्यों खिलाया। और वो जो एक्सपीरियंस है उसके लेफ्ट ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाता है। और बड़ा होने के बाद तो जिंदगी में करेला बातें लगाते हैं, करेला दिख गया तो उसको बचपन का जो रोया था वो एक्सपीरियंस याद आ जाता है। उससे भी ज्यादा कड़वा चीज लेने चालू हो जाता है, दारू भी पीने चालू हो जाता है, एक करेला दिखता है, क्योंकि इट इज रिकॉर्डिंग द लेफ्ट ब्रेन। बाद में राइट ब्रेन आता है। राइट ब्रेन का भी फंक्शन है। ये जो लेफ्ट ब्रेन का मैं फिनोमेना बोला ना, वो सीक्वेंस बना था ना, लेफ्ट ब्रेन की वजह से हम लोग रोज शाम को अपने अपने घर पे पहुंचते हैं। लेफ्ट ब्रेन ही बोलते हैं ऐसा जा वैसा नहीं, तेरा घर है। वरना अगर लेफ्ट ब्रेन फंक्शन नहीं करे तो अपन हमेशा दूसरे के घर पे जाएंगे। अब तुम लोग चाहते भी हैं कि मैं बाजू वाले के घर पे जाऊं, वो कपड़ दिखती है। राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन को इमेजिन, बैठे बैठे इमेजिन कर, क्या शाम को दीपिका पादुकोण सब डांस कर रहे हैं, वो नहीं, वो तो कुछ भी नहीं, पर इमेजिन राइट ब्रेन था। कभी कभी आप देखे होंगे, खास करके छोटे बच्चों समझो आपके सोसाइटी में होंगे, और इंडिया समझो वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत गया, तो सब बच्चों को लगता है कि मैं ही प्लेयर हूं, और ऐसा ऐसा आपके पड़ता है, हाथ में बॉल भी नहीं है, इमेजिनेशन, ये आगे बारे मैं विराट कोहली हूं, बैट किधर है, बैट भी नहीं है, कहाँ है सब, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। बच्चे लोग इमेजिन बहुत फास्ट करते हैं, they live on imagination. It is also called creative brain, right brain. मोबाइल से लेकर, स्लाइड चेंजर से लेकर, कैमरा से लेकर, टेस्ला कार से लेकर, न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर,
जितना भी छोटा मोटा इनोवेशन एंड इन्वेंशन हुआ, एवरीथिंग इज राइट ब्रेन एक्टिविटी। लॉजिकली करने का तो अभी भी बोलता हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, वहां कोई देखे, इट इज नॉट पॉसिबल। फिर क्या टीवी में देखते हैं राइट ब्रेन फिनोमेना। आज अपने घर पे अपन बड़े बड़े एसी लगाते हैं, हो सकता है 25 साल के बाद एक पेन जैसे आएगा, यहाँ लगा लो और बॉडी में पूरा कूलिंग चालू हो जाएगा। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन, लेकिन 25 साल के बाद रियल हो सकता है। ऐसा पिछले 25 साल में कितना भी इन्वेंशन हुए हैं ना, पिछले 200 साल में नहीं हुआ है। और पिछले 25 साल में जो भी इन्वेंशन हुए हैं ना, वो बोलते हैं कि आने वाले 50 साल में जो इन्वेंशन होने वाले, उसके रेंज में खाली 25% है। मतलब जस्ट इमेजिन आगे और क्या क्या होने वाला है। क्या कुछ बोलते हैं मैं चर्च के जाके आता हूं, हो सकता है 50 साल के बाद बोलते हैं मैं चांद में जाके आता हूं, मैं मार्स में जाके आता हूं। पी पूछेगी कहां जा रहे हो, मैं चांद में जा रहा हूं। आज बोल के देखो मैं चांद से मिलने जा रहा हूं। चल गया ऐसा नो। ऑल दिस आर राइट ब्रेन एक्टिविटी। इंट्यूटिव ब्रेन बोलते हैं, इंट्यूशन। सीए एग्जाम में क्वेश्चन आया, आंसर मालूम नहीं, फिर भी अंदर की आवाज आई ये लिखा बिंदास, लिख दिया, पास भी हो गया। अब बोलते फिर क्यों हुआ, होता है इंट्यूशन। असं वाटलं मला, आई थॉट गाड़ी चला रही है, ठक करके ब्रेक वाला ऐसा ब्रेक दबाते हैं, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं कि मैं ब्रेक को दबाया, तो यहाँ घुमाते या यहाँ घुमाते कार को, क्यों यहाँ तो घुमाया वहां तो नहीं घुमाया, बस लग गया इंट्यूशन यार। Intuition is also called right brain understand pictures. विराट कोहली, विराट कोहली दिमाग में क्या है, VIRATKOHL है कि कोहली का फोटो है, फोटो है। अगर फोटो आ रहेगा ना तो यू आर यूजिंग योर राइट ब्रेन, एंड अगर वर्ड्स आ रहेगा ना यू आर यूजिंग द लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन कोई बुरी बात है, याद रखना, नेगेटिव नहीं हो। If at all you are using the words, you are using the left brain, and suppose you are getting the pictures in hand, you are using the right brain. Simply. Gujaratis in the north of Maharashtra. स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे मालूम पड़ा, मैप दिखा दी, मैप को फोटो दिखा दी। अगर सेंटेंस रहेगा कि गुजराती इन द नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र, अपन कभी कभी भूल जाते थे, लेकिन जैसा मैप देखते हैं ना, मैप, राइट ब्रेन, राइट ब्रेन, we are able to remember Gujarat किधर है, कर्नाटक किधर है, केरला किधर है, तमिलनाडु किधर है। Sentence wise you will not be able to remember, but map देखने के बाद you are able to understand the position of every state in India. Map. अमेरिका में माइंड मैपिंग is one of the method of teaching students. मैप के हिसाब से सब पढ़ाते हैं, पर इंडिया में अपन रट पढ़ाते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन is also called sixth sense. 5 senses, left brain, sixth sense, right brain। जनरली दोनों ब्रेन डेवलप होना चाहिए, उसके बारे में जरा थोड़ा बाद में आपको बस। ये डाउट होगा, 2 प्रकार के लोगों को कभी डाउट होता ही नहीं है। एक जिसको सब समझा हो, दूसरा जो खाली ब्रेकफास्ट के तब मैं ब्रेकफास्ट बोला तो ब्रेकफास्ट स्पेलिंग तुम्हारे दिमाग में आया कि इडली डोसा। अगर पिक्चर आ जाएगा तो राइट ब्रेन और स्पेलिंग आ जाएगा लेफ्ट ब्रेन। देखो टोटल ब्रेन पावर में लेफ्ट ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट ओनली 10% ऑफ टोटल ब्रेन पावर। टोटल ब्रेन पावर में लेफ्ट ब्रेन इज ओनली 10% एंड द राइट ब्रेन इज द रिमेनिंग 90%। अगर तभी तुम्हारी जिंदगी में फियर है, क्या होगा, 1,30,000 में गोल्ड को ले लिया, आगे क्या होगा, 2 लाख होगा कि 1 लाख होगा, फियर, यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ब्रेन।
doubts, tensions, stress, whenever you are having fear, whenever you are having doubts, whenever you are having tensions, whenever you are under stress, समझ जाने का, you are operating on the left brain phenomena because you are thinking logically, not creatively, not innovatively. You are totally operating on the left brain phenomena. Right brain में क्या है? सुख 90% है, कॉन्फिडेंस है, राइट ब्रेन, सक्सेस है, you are feeling success, you start feeling success, you start feeling confidence, you start feeling rich. पैसे से मतलब नहीं है, you start feeling rich, you start feeling successful. बहुत से लोग 10 बंगले हैं, फिर भी they start feeling poor. उनके मन में डर है, they are under stress, they are not able to enjoy the property, they are not able to enjoy the wealth. They are operating on the left brain. राइट ब्रेन में कॉन्फिडेंस आएगा, सक्सेस आएगा, रिचनेस आएगा. ये सब माइंड गेम है. लाइफ इज अ माइंड गेम. लाइफ में वही जीते जिसका माइंड पावरफुल है. लेफ्ट ब्रेन 10%, राइट ब्रेन 90%. हाउ टू एक्टिवेट? मेन क्वेश्चन वही है, हाउ टू एक्टिवेट. सुबह उठा, ऑफिस गया, रात को वापस आया, सुबह उठा, ऑफिस गया, रात को वापस आया, सुबह उठा, फिर गया, रात को वापस आया. अंडर स्ट्रेस, फियर, आज का क्या होगा, कल का क्या होगा, कल रिपोर्ट का क्या होगा, रिटर्न फाइल करने वाले निर्मला सीतारमण क्या क्या कर रही है, मोदी गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है, क्या टाइम लास्ट मोमेंट में 12 बजे एक्सटेंड हो करते हैं. ऐसा वैसे दिमाग में फियर, स्ट्रेस, टेंशन रहेगा. योर ऑपरेटिंग ऑन द लेफ्ट ब्रेन. राइट ब्रेन एक्टिवेट करने का बहुत सिंपल तरीका है. नंबर 1, म्यूजिक. मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि व्हेनेवर यू आर डूइंग अकाउंट्स या मैथ्स, अपने मोबाइल में पीछे कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा के रखना, तो डिस्टेंस पे और बाद में स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर वेरी फास्ट. जैसा म्यूजिक अपने कान में जाता है ना, राइट ब्रेन ऑल्सो स्टार्ट्स फंक्शनिंग, एंड जैसा दोनों ब्रेन काम करने चालू हो जाता है, आउटपुट विल बी मोर. एग्जाम में वो गाने का आवाज सुनो, आवाज अपने आप प्ले होता है. सुनो, अपने आप ले. तब तो अभी प्ले होता है. अगर पढ़ते वक्त सुनो. क्या है सर? इधर मेरे करीब आ जाइए. जरूर से. कितने लोग म्यूजिक सुनते हैं, हाथ ऊपर करना. म्यूजिक 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 म्यूजिक. वाह. कितने लोग गाते हैं इसमें से? सबके मन में एक फियर आ जाए, ब्रेन कहीं आगे तो नहीं बोला. फियर फियर लेफ्ट ब्रेन, तो लॉजिकल ब्रेन. आदमी का भरोसा नहीं है, कोई भी पहन के आया ना, ये आगे बुला लिया तो यू सिंग. वाह, ग्रेट. अपने पास म्यूजिक सुनने टाइम है, तो बेस्ट टाइम इज बाथरूम. स्नान करते समय मेरे मोबाइल में कुछ 250 किशोर कुमार के सॉन्ग्स. किशोर कुमार मेरे लिए भगवान, क्योंकि मैं जब 1969 ऑनवर्ड जब आराधना आया, तब से मैं बड़ा हूँ. एट द डे ऑनवर्ड्स तो किशोर कुमार साथ में भी बड़ा हुआ. तो उसका सब गाना मतलब अपने लिए मैजिक है. तो गाना वैसा बाथरूम में किया, शेविंग से चालू किया, 3-4 गाना मस्त सुन लेता हूँ किशोर कुमार का. जवानी दीवानी से लेकर रूप तेरा मस्ताना से लेकर, कभी कभी आशा भोसले भी पिक्चर में आते हैं, पिया तू से लेकर. म्यूजिक जिंदगी में होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. डांस, कितने डांस करते हैं आप? आज नीचे हो गया है. लेफ्ट ब्रेन बोलता है, लेफ्ट ब्रेन. वाह, कितनी चीज कुछ हो गया. लेफ्ट ब्रेन बोलता है सीए बनने के बाद कोई डांस करते. घर वाली बोलती है तो तुम सीए हो, तुम डांस करे. तुम क्या रोड का गली का आदमी डांस करते? माधुरी दीक्षित ने बोला कि यू शुड ऑलवेज डांस एज इफ नोबडी इज वाचिंग यू. नोबडी इज, तो ही रियल डांस आएगा. द बेस्ट डांस इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, इज अ गणपति विसर्जन डांस. अभी भी नवरात्रि हुआ, कितने लोग डांडिया के हाथ ऊपर. अब सीए पैसे कमाने के पीछे गणपति में कितने लोग विसर्जन में डांस किया हाथ ऊपर.
और जो ताशा बजता है वो म्यूजिक इज, मैं बहुत डांस करता हूँ, अभी करने मत बोलो। डीजे बजा, गणपति, नवरात्रि, पूर्वी को मालूम है आई डांस। फिर तुम लोग सोचा मैं पूर्वी को पैसा दिया वहां पर। जिंदगी में डांस इज मस्त। देखो और देखो, डांस और म्यूजिक में कोई लॉजिक नहीं। डांस में तो लॉजिक ही नहीं है, कुछ भी गाना आएगा तुम्हारा स्टेप नहीं होते कि पहला ऐसा करो फिर ऐसा करो, कोई लॉजिक नहीं रहता है। इट क्रिएट्स, इट शोज योर क्रिएटिविटी। घर में बच्चा है उसके साथ डांस करने, बट अपन बच्चे को बोलते सोफे में डांस मत कर। हाँ ना, लाइफ में डांस होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए टू एक्टिवेट द राइट ब्रेन। नाच नाच के ऑफिस में मत जाना। कितने लोग गेम्स खेलते हैं हाथ ऊपर, गेम्स, वाह क्या गेम। गेम का मतलब मोबाइल का गेम को मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, पबजी का तो जरा भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल फिजिकल गेम्स इंक्लूडिंग बोर्ड गेम। लूडो खेलते हो, लूडो, सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी खेलते हो। सबसे डेंजरस सांप कौन सा नंबर है? 98 है। मैंने एक बुक लिखा है लाइफ मेड सिंपल। मैंने एक बुक लिखा है लाइफ मेड सिंपल, अवेलेबल है बाहर, 10% डिस्काउंट। आज 270 का रेट है, 300 में बेचता हूँ मैं, खरीद लेना। उसमें ये एग्जाम्पल दिया, बहुत कमाते 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 लास्ट में जब अपने जिंदगी के 98 या 99 आते हैं ना, वी टेक ए रॉन्ग डिसीजन, बैड डिसीजन, सब पैसा उठा के शेयर मार्केट या दूसरा कोई प्रोजेक्ट, और वो सांप सीधा 11 में आके आ सकते हैं। नो बुक का नाम है लाइफ मेड सिंपल। स्टार्टिंग में बहुत बिका, पूरी पब्लिक को लाइफ किया पे वही बिका पड़ा, लाइफ मेड सिंपल बहुत बिका। मतलब और लाइफ मेड सिंपल, लाइफ के नाम में मेड सिंपल। तो बुक खरीद लेना, 270 का रेट है ना। गेम्स, आई प्ले डेली बैडमिंटन, क्योंकि जी लूडो खेलते, वाह लूडो गेम्स का मतलब लूडो सांप सीढ़ी से भी आगे आओ, मैं फिजिकल गेम से बात कर रहा हूँ। लूडो में आप जब चाय के पीछे आएगा, जब चाय का पीछे नहीं आएगा, मैं सिखा पिछले जन्म में शकुनी था। I play badminton every day for 40 minutes to 1 hour, बहुत धमाल रहता है। इधर पीछे रहता हूँ। बैडमिंटन में कभी स्टार्टिंग में 2-2 आते, 2-2, फिर 3-3 होता है, फिर 4-4 भी होता है। यहाँ ये टीम में 4, वो टीम में 4, लेकिन उसमें बहुत फन रहता है, मजा रहता है, वी एंजॉय। कल ही मैं एक जगह पे क्रिकेट खेल दिया। गेम्स के लिए, म्यूजिक के लिए और डांस के लिए कोई एज नहीं है यार। आई रिपीट, गेम्स के लिए, डांस के लिए और म्यूजिक के लिए क्या बोला मैंने? एज नहीं, ये सब अपना मेंटल ब्लॉक है। लेफ्ट ब्रेन ब्लॉक करने की कोई बाजू वाला क्या सोचेगा तेरे बारे में? बाजू वाला खुद के बारे में सोच रहा है, बाजू वाली सोच रही है कि मेरा पति ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। नहीं समझ रहे हो? बाजू वाली सोच रही है कि मेरा पति ऐसा डांस क्यों नहीं कर रहा है। जिस दिन तुम लोग ये सब लाएगा जिंदगी में क्वालिटी फॉर 1 आवर, बाकी तुम्हारा 23 आवर्स बहुत बढ़िया है। अदरवाइज यू ऑलवेज अंडर प्रेशर, सुबह से रात तक प्रेशर, कार में बैठने के बाद प्रेशर, ट्रैफिक का प्रेशर, घर पे वाइफ का प्रेशर। ये तीनों में एक खासियत ऐसा है, यू स्टार्ट स्माइलिंग, यू स्टार्ट लाफिंग, यू स्टार्ट स्माइलिंग, लाफ्टर स्टार्ट्स। घर पे हम लोग हंसते नहीं है, याद रखना। ऑफिस में तो अपना कंजूसगिरी का अल्टीमेट दिखाते हैं हमको,
इसलिए के लिए यू हैव टू डू ऑल दिस, आइदर म्यूजिक और डांस और गेम्स ऑल टुगेदर। कितना ड्राइंग करते हैं आपको पता है? ड्राइंग, ड्राइंग, वाह मैडम आपका नाम क्या है? आप सब करती हो, म्यूजिक डांस ड्राइंग, सीए भी किया ना, ग्रेट यार। नाम क्या आपका? श्वेता हियर, सुपर, वेरी हैप्पी। ड्राइंग, मैं कभी ड्राइंग नहीं किया था, मैं लास्ट मंथ में एक लेडी ने अपने घर पे बुला के ड्राइंग सिखाया, वेरी सिंपल ड्राइंग का, ड्रॉ करके रखा था, मेरे कल कलर कर दिया। कलर कैसे करने का? उसको कुछ बोला, उसने कुछ बोला कॉफी ड्राइंग, मेरे लगा कॉफी पे लाएगी, इसे लगा कॉफी ड्राइंग, तो नेस्काफे लिया, नेस्काफे को एक प्लेट पर डाला, नेस्काफे के ऊपर पाउडर, पाउडर को प्लेट पर डाला, फिर उसको जब पानी मिलाया और बाद में ब्रश किया और ब्रश से ड्राइंग करके बोला, तो बोल रहा है लेकिन 2 घंटा कहाँ गया समझाए। आई वॉज इन दैट ट्रांस, अगर हम लोग म्यूजिक भी नहीं कर रहे, डांस में भी इंटरेस्ट नहीं है, गेम्स में तो हम लोग दूर दूर तक कुछ नहीं है, ड्राइंग भी नहीं कर रहे, क्राफ्ट अपने स्कूल में कभी का छुट्टी है, स्कूल में क्राफ्ट होता है क्या? घर में भाई का चलो 5वीं 6वीं के बाद छोड़ देते हैं, तो क्राफ्ट के लेक्चर में मैथ्स वाले आके लेक्चर ले लेंगे, तो कंप्लीट द पोर्शन ले लो। और एक है रिलैक्सेशन या मेडिटेशन, where the right brain gets activated। कितना बजे तक है? क्या? अच्छा इडली तैयार नहीं हुआ है? जगह नहीं है या तो एक क्रिएटिविटी है, ले जाएगा पहले खून दो, तो मैं तुम्हें आता भी समझूंगा। पहला नहीं, तो म्यूजिक, डांस, गेम्स, ड्राइंग्स एंड रिलैक्सेशन, एंड भी चलेगा और भी चलेगा, बट वॉट एवर मे बी योर एज, whatever may be your age, याद रखना, जैसा तुम लेफ्ट ब्रेन को बोलेगा कि मैं 60 ईयर ओल्ड हूँ या 40 ईयर ओल्ड हूँ, मैं 30 ईयर ओल्ड हूँ, मैं बड़ा सीए हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहिए, अपना जिंदगी का जो आनंद है ना, आनंद, ये सब तुम लोग खो रहे। आनंद तो इसी में है, रिलैक्स। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, लोगों को दिखता नहीं है बच्चा सोएला है, नीचे बच्चा सोएला है, सोएला है, नहीं है, बच्चा नहीं है, वो उड़ गया लड़का की लड़की देखने के लिए। फिर बाद में पहला राइट ब्रेन डेवलप, जब भी बच्चा पैदा होता पहला क्या डेवलप होता है? राइट ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन, इनोवेटिव ब्रेन। उसके हाथ में कुछ भी दो, कुछ भी मतलब वहां रखो गाली, वो पहला आएगा टच करेगा, फिर बाद में हिला के देखेगा, बाद में मुंह में रखेगा, देखेगा उसको, he will try to find out है क्या, इन्वेंट करेगा क्या है ये, और जैसा मुंह में डालेगा तो उसका माँ का फटका गिरेगा, इतना गंदा चीज मुंह में डालेगा नहीं है, तो बोलेगा मम्मी आपने रखा तो मिस्टेक आप पे आएगा, मैं तो सब रिसर्च करेगा ही। उसके हाथ में डब्बा दे दो, डब्बे में रस्सी बांध देगा, उसका ट्रेन चालू कर, अपन बोलेगी क्या क्रिएटिविटी है, ये बड़ा होकर इंजीनियर बनने वाला है, और यही काम समझो कोई बड़ा आदमी किया, दबा लेके कर के, तो अपना लेफ्ट ब्रेन बोलते हैं तो पागल हो गया है, अरे लेफ्ट ब्रेन है ना लॉजिकल, बड़े लोग नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल देते हम, ऐसा नहीं बोलते कि बुढ़ापे में इंजीनियर बनेगा। राइट ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड इन द चाइल्डहुड, कोई भी बच्चे को, मेरे घर पे एक 3.5 बरस का बच्ची है, उसको ना कल की परवाह, कल क्या क्या मालूम है, कल के आने वाला मालूम है, ऑलवेज एंजॉयिंग द मोमेंट, थकते ही नहीं लोग यार, हम थक जाते हैं बांध के, वो लोग थकते नहीं है, बिकॉज दे आर लिविंग इन द प्रेजेंट, दे एंजॉय म्यूजिक, दे एंजॉय डांस, दे एंजॉय गेम्स। फिर सीए के एथिक्स में सिखाते हैं, यू आर नॉट सपोज्ड टू एंजॉय ऑल दिस टू बिकम अ बिग सीए, सही क्या? बाद में जैसा बड़ा होता है ना,
उसका स्कूलिंग चालू होता है और लेफ्ट ब्रेन ब्लू है, ये रेड है, ये 1 2 3 4 है, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लॉजिक सिखाते हैं और उसको बहुत डिसिप्लिन लाते हैं, डिसेंसी सिखाते हैं। और बहुत बार समझो घर पे कोई आया रहेगा और उसको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं मिला रहेगा, कभी वो जानबूझ के सोफे में कूदेगा, तो आप दिमाग में लगे अरे यार 4 लाख सोफा ये कूद रहा है यार, डांट भी नहीं कर सकता है, चलो बोल बोलते सोफे में कूदने का नहीं, फिर उसको डिसिप्लिन करने के चक्कर में उसका राइट ब्रेन का क्रिएटिविटी का वाला। कभी कभी बोलते कूदना है तो बाजू वाले कर दिया up to the age of 14, no? Up to the age of 14, 14, 13 समझो नौवीं या 10वीं पकड़ो, दोनों ब्रेन डेवलप, लेफ्ट ब्रेन पढ़ाई डेवलप होता है, राइट ब्रेन क्रिएटिविटी भी रहता है, टेनिस देखता है, क्रिकेट मारता है, स्पोर्ट्स खेलता है, सब he is able to develop both. इसको बोलते हैं अल्फा लेवल। This level is called अल्फा लेवल। अराउंड 9 का 10 पकड़ो, वो एज में उसका क्रिएटिविटी भी मैक्सिमम रहता है, पढ़ाई भी मैक्सिमम रहता है, और बाद में जैसे वो 10th में आता है ना, बाद में गड़बड़ चालू होता है, लेफ्ट ब्रेन बढ़नी चालू हो जाए, तो साइंस का रट्टा मारो, मैथ्स का रट्टा मारो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खेलना बंद। मेरे पास एक 10th का स्टूडेंट था, उसका माँ आई थी मेरे पास, तो बोला कि सुबह सुबह वो स्कूल जाएगा, बाद में घर पे आएगा, 1 घंटा आराम करेगा, फिर वो कोचिंग क्लास जाएगा, फिर घर पे आएगा, नो टीवी नथिंग, बाद में सो लेगा, तब पढ़ाई कर लेगा और बाद में सो लेगा, फिर अगले दिन वापस आएगा, वो पहले स्कूल जाएगा, फिर 1 घंटा कुछ आराम करेगा, खाना पीना खा के, फिर कोचिंग क्लास में आएगा, फिर घर पे आने के बाद घर पे आएगा पढ़ाई करेगा वो। तो आपको बराबर से जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। रात को घर पे आने के बाद 1 घंटा टाइम दो खेलने के लिए, टाइम तो है ही उसके पास, आजकल के बच्चे के पास टाइम है ही नहीं, एक्चुअली 10th में आने के बाद क्रिकेट खेलने दो, टेबल टेनिस खेलने दो, लूडो खेलने दो, सांप सीढ़ी खेलने दो, कुछ नहीं है, साइकिलिंग करने दो सोसाइटी में, वो भी नहीं है, वॉकिंग करने दो। वो माँ मेरे को डांटा, बेटे तुम क्या जाते हो मेरे बेटे के बारे में, 56% का, क्योंकि उसका जो क्रिएटिव ब्रेन है ना वो डेवलप हुआ नहीं, लेफ्ट ब्रेन में ही खेलते रहा। और कुछ दिन के बाद वो लेफ्ट ब्रेन इतना होता है, फिर 12th आता है, फिर साइंस लेता है, फिर बाद में सीए बनता है, फिर वापस पढ़ाई 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 पढ़ाई, सिंगिंग करने लगा, सीए बनने का, डांसिंग करता है कि सीए बनने वाला है तू, अभी तू गेम खेलेगा सीए बन। और बाद में स्लोली जो अपना क्रिएटिव ब्रेन है ना, डेली प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, टैक्स, रिटर्न फाइल करो, बस शादी के बाद में एक ही गेम खेलता हूँ। क्लियर? अभी आपको एक काम करने, गाना तो नहीं गाने वाले, डांस भी नहीं करने वाले, गेम्स भी नहीं करने वाली, ड्राइंग भी नहीं करने वाली, बट रिलैक्सेशन करना है, एक सिंपल टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन। तो करने के बाद देखते क्या करेंगे, देखिए वो रिलैक्स करने के लिए सबसे पहले जो लेफ्ट ब्रेन है, नो वी आर फंक्शनिंग 21 साइकिल्स पर सेकंड। आपने एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पहले उसको 14 साइकिल्स पर सेकंड में करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन, रिलैक्स करना पड़ेगा, मैं तुमको सुना देगा, बट द ब्रेन विल बी एक्टिव, ब्रेन विल बी एक्टिव। रिलैक्स करने के बाद रिलैक्सेशन, देन वी विल विजुअलाइज, न्यूरो विजुअलाइजेशन, न्यूरो, देन वी विल डू सम अफर्मेशन, मुझसे कुछ बोलेंगे मन में, yes, so visualization and affirmation is effective only after relaxation, when you activate the right brain। मेरे पास बहुत लोग आते हैं बोलते हैं आपने ये सब करने बोला, मैंने सब किया, कोई इफेक्ट नहीं आया, मैं पहला कुछ पहले रिलैक्स हुआ गया, तो अपना ब्रेन वेव्स को 14 सेकंड पर सेकंड में लेके आएगा, अल्फा लेवल में लेके आएगा, नो वी आर ऑपरेटिंग एट बीटा लेवल, बीटा से अल्फा में लेके आएगा, वो ले गया, फिर कैसा आएगा। सबसे फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज योर ब्रेन शांत होना चाहिए, और उसके बाद पिक्चर देखो और मन में बोलो, यू क्रिएट मैच। ये कौन की बेहतर, ये कौन थी,
ऐश्वर्य नहीं था। चलो ऐश्वर्य को भी नहीं भूल गए तो भूल कर यार। रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन, आई कॉल इट आरवीए मॉडल। रिलैक्स करने का, फिर विजुअलाइज करने का न्यूरो, अफर्म करने का लिंग्विस्टिक, और बाद में अपने जिंदगी का प्रोग्राम करेंगे। 10 मिनट लगेगा। एवरीवन रेडी? मोबाइल बंद कर देना प्लीज, मोबाइल बंद कर देना। मैं तो आंख बंद करने बोलने वाला हूँ। आंख बनने के बाद हम लोग सीए लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें से 4-5 लोग का ऐसा रहता है कि आंख बनने के बाद एक हमको के देखता ही है कि कहीं पे अकेला तो फंसा नहीं है। क्रिएटिव ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन। तो मुझे 1 घंटा हुआ, भरोसा नहीं आया मेरे पे, समझ सर, भरोसा नहीं है, बट अभी भरोसा कर लेना। 10 minutes we have to create magic in your life. Yes, yes, yes or no? Yes. मैं पहला बोलेगा हाथ लुका, लुका का मतलब थोड़ा ऊपर दिखने। अभी मत देखो कुछ खड़े हो गया ना। कैसे ऊपर दिखने का? फेस स्ट्रेट, खाली आईलिड्स ऊपर, ठीक है? ऐसा मत देखना, इफेक्ट नहीं है। फेस स्ट्रेट, पूरी आईलिड्स ऊपर। जैसे आईलिड्स ऊपर करने के बाद आंख बंद कर देना, राइट ब्रेन गेट्स ऑटोमेटिकली रिलैक्स एंड एक्टिवेटेड। तो सिट स्ट्रेट, बी वेरी कंफर्टेबल, मोबाइल पॉकेट में डाल लो, ठीक है? Please look up, look at the ceiling, look at the ceiling for a few seconds. आंख खोल के, सर फेस स्ट्रेट, फेस स्ट्रेट, फेस स्ट्रेट, फेस सामने रखिए, खाली आईलिड्स ऊपर, खाली आईलिड्स ऊपर, खाली आईलिड्स ऊपर, खाली आईलिड्स ऊपर, खाली आईलिड्स ऊपर। बस, close your eyes and relax. Close your eyes and relax. And relax. Relax your toes. Focus on your toes. और मन में बोलना, relax, relax and relax. Your toes are now completely relaxed. Relax your heels. Focus on your heels. Your heels are now completely relaxed. Relax your calf muscles. Focus on your calf muscles. Your calf muscles are fully relaxed. Relax your kneecap. Your knees are getting completely relaxed. Relax your thigh muscles. Relax your thigh muscle. Your thigh muscles are now completely relaxed. Relax. Relax your waist. Relax every part of the waist. Relax your back. Relax every muscle at the back. Your back is now completely relaxed. Relax your spine muscles. Relax your spine. Relax your stomach. Relax the digestive system.
पेट को बोलो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पेट को बोलो ज्यादा बढ़ना नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, रिलैक्स योर चेस्ट मसल्स, relax your chest muscles. Your chest muscles are completely relaxed. Relax your neck. Relax your neck muscles. Relax your face. Relax your chin. Relax your cheekbones. Relax your eyes. Relax your eyes. Relax your forehead. Relax your head and brain. Relax. Relax your fingers. Relax your fingers. Relax your forearm. Relax your shoulders. You are now completely relaxed. From top to bottom, head to toe, completely relaxed. Relax. Your breathing has become very slow now. You are feeling wonderful and excellent. Relax. Imagine a golden light at the center of your body inside. Imagine a golden light at the center of your body inside. The golden light is becoming brighter and brighter. The golden light is becoming brighter and brighter, making you very relaxed. Let the golden light move in the every part of your body inside, और जहां भी पेन रहेगा, तकलीफ रहेगा, the golden light is curing them all. Golden light is clearing everything. मन में बोलना, looking at the body inside, divine light is flowing through me, creating miracles in my life. Divine light is flowing through me, creating miracles in my life. Divine light is flowing through me, creating miracles in my life. Relax, enjoy the moment. Enjoy the moment. Imagine your home, सब फैमिली मेंबर साथ में बैठे हैं, वेरी हैप्पी, डिस्कसिंग, जोर जोर से हंस रहे हैं. इमेजिन योर होम, सब जोर जोर से हंस रहे हैं. मन में बोलना, आई एम एंजॉयिंग a happy family. I'm enjoying a very happy family. Visualization, happy home. Affirmation, बोलने का, I'm enjoying a very happy family. I'm going to go on 1 to 10. Slowly open your eyes. 10 में आंखें खोलना. Very slow. 1, 2, 3. Slowly open your eyes. When you open your eyes, you will feel very fresh, healthy, and happy. 4. When you open your eyes, you will feel very fresh, healthy, and happy. 5, 6. Open your eyes, feeling fresh, healthy, and happy. 7. You are feeling highly energized.
feeling better and better than before. 8. You are feeling better than before, highly energized. 9. And 10. Slowly open your eyes, feeling fresh, healthy and happy, highly energized. Open your eyes, open your eyes. You can rub the palm and feel the warmth. मैं समझ गया, आगे तुम्हें समझ लिया। खाली इतना भी करेगा ना दिन में, immunity will increase, concentration will increase, आपको गुस्सा कम आएगा, you will feel warm, you will feel calm, efficiency अपने आप बढ़ेगा। When you dream रोज सोने के बाद, तो लॉजिकल ब्रेन सो जाता है ना, लॉजिक ही नहीं है। ड्रीम्स आर इन द राइट ब्रेन ना। सीए एग्जाम करते समय ये मेरा अनुभव है, तुम्हारा भी हुआ रहेगा। मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, रात को 12-1 बजे तक, लेकिन टैली नहीं हो रहा है। आधा घंटा सोच रहे किधर मिस्टेक टैली नहीं हो रहा है, बंद करके सो गया। आज सुबह उठे 5 मिनट्स यू आर एबल टू फाइंड द आंसर, क्योंकि यू आर नंबर 1 फ्रेश एंड रात भर राइट ब्रेन इज थिंकिंग वेयर द मिस्टेक वाज। अभी जब वर्ल्ड कप वुमेन्स जीता ना, तो वर्ल्ड कप फाइनल के पहले वो जो हरमनप्रीत कौर है कैप्टन, उसको सचिन तेंदुलकर का फोन आया और वो बोले कि आई वांट टू मीट ऑल द गर्ल्स। और बाद में सब लड़की लोग से उसका इंट्रोडक्शन हुआ और बाद में सचिन ने एक ही बात बोला, जब भी गेम खेलते समय यू फील कि गेम बहुत फास्ट जा रहा है, वो लोग बहुत फास्ट आगे बढ़ रहे हैं, तो ट्राई टू स्लो डाउन द गेम। जब बिल्डिंग यहाँ वहां चेंज करना, बॉलर को जब बोला झड़ना ज्यादा लेके आना, बट ट्राई टू स्लो डाउन द गेम। अगर ऐसा लग रहा है कि फास्ट मेरे हाथ से गाड़ी आ रहा है, ट्राई टू स्लो डाउन द गेम। और जैसा स्लो होएगा, एट दैट मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग सम चांसेस, सम मोमेंट्स आएगा ऐसा, व्हेन अपॉर्चुनिटी विल कम एंड दैट यू हैव टू टेक। जिंदगी में भी अपन फास्ट भागते रहेंगे, समझ में नहीं आता कि घर किधर है, ऑफिस किधर है, मालूम में बाजू वाला किधर है, सिंगिंग डांसिंग गेम जैसे फॉरेन में, ये सब मैं 70 की बात करूंगा ऊपर जाके। तो 15 मिनट स्लो डाउन करने का, स्लो डाउन योरसेल्फ, इस राइट ब्रेन एक्टिवेशन के बाद अपने ऑफिस को देखो, घर पे देखो, दुनिया को देखो। कितना लोग रिलैक्स हुए, जब हाथ ऊपर में रिलैक्स हुए, वाह क्या बात है। 5 मिनट चोरी कर लिया हमने। एनएलपी में एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं एंकरिंग। Now what is anchoring मैं बोलता हूँ, ऐसा बहुत से कॉन्सेप्ट है, एंकरिंग है, मिररिंग है, रिफ्रेमिंग है, ऐसा बहुत से कॉन्सेप्ट है इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एक टेक्निक का हाउ टू एक्टिवेट द राइट ब्रेन हो गया। एंकरिंग का मतलब ऐसा है कि बहुत लोग देखा है, बहुत से सब लोग मंदिर से गुजरा, माजू से कार ले रहे, तो ऐसा कर लेती, ऐसा प्रणाम कर लेती, एंकरिंग। क्या समझो कोई बड़े बुजुर्ग भी अपने जगह पहुंच चुके, ये सब एंकरिंग अपने लिए बचपन से सिखाया आपने। We are anchored, tuned to that. We do it automatically. This is called anchoring. वैसे एक एंकर में सेट करना चाहता हूं। हम लोग कुछ 7 फ्रेंड्स महाबलेश्वर गए थे, और महाबलेश्वर में से आते समय एक ही गाना, एक ही इनोवा लेके गए थे। आते समय इतना हंसा कि मेरे को लगा कि हंस हंस के भी मर जाऊंगा। पहला हंसमुख मुर्दा, इतना हंसा। सीधा अगले दिन वो पूरा पिक्चर को याद किया, फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर को जोड़ा। When I am at the peak, वो पीक होना चाहिए, याद रखना, वो पीक ऑफ लाफ्टर आई एंकर विथ माय फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर। और जब भी समय टेंशन आ गया, प्रॉब्लम आ गया, मेरे खाली फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर ज्वाइन कर लिया ना, ऑटोमेटिकली आई एम विद महाबलेश्वर का। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अदरवाइज वी आर एंकर्ड विद टेंशन। बॉस का चेहरा देखा के टेंशन, कभी कभी हम बॉस रहेगा तो एम्प्लॉय का चेहरा देख के टेंशन आता है, सारा छोड़ दिया तो देखो तो एक 2-3 मिनट का अपन करने वाले, काम बंद करने के बाद तुम लोगों को अपना जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट याद कर लेना,
हैप्पीएस्ट का मतलब जहां तुम हंसे रहेंगे ना, बचपन से लेकर आज तक कौन से हो सकते हैं। 5 या 6 वर्ष का था, कबड्डी खेल रहा था, एक मोटा सा आदमी कबड्डी 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 बोल के मैं अकेला था, और जो उसका पैर मेरे हाथ में फंसा ना, और मैं उसको आउट जो किया ना, आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। इट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट अचीवमेंट इन माय लाइफ। पैसा नहीं था, ऐसे एक जिंदगी का एक लाफ्टर हैप्पी मोमेंट याद करो जरा। जब याद करने में होता तो बहुत लोग जिंदगी में टेंशन आता है, मैं तो हंसते ही नहीं। हैप्पी मोमेंट चाहिए। शादी के बाद तो पहला था, शादी के बाद वो भी खत्म हो गया, फिर हंसना ही बंद हो गया, लोग भी हस्बैंड हस्बैंड बुलाते, हस्बैंड के बाद हंसना बंद। ठीक है, चलो सुना। अच्छा, जब मैं बोलेगा ज्वाइन द फिंगर्स तभी ज्वाइन करना है, उसके पहले मत करना, एंकर ही करना। चलो प्लीज क्लोज योर आईज, वी आर प्लेइंग अ मेंटल गेम। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, रिलैक्स, फोकस ऑन द ब्रीथिंग, फोकस ऑन द ब्रीथिंग। कहना कि आप गुस्से में देख रहे हैं, मैं मानता हूं, फिर भी close your eyes, close your eyes, close your eyes, relax. बस imagine the happiest moment of your life. Imagine the happiest moment of your life. Imagine the happiest moment of your life as if you are there. You are there. सोचो उस दिन क्या हुआ, कौन क्या डायलॉग मारा, कौन क्या डायलॉग मारा, और आप हंस रहे हो, आप हंस रहे हो, जोर जोर से हंस रहे हो, जोर जोर से हंस रहे हो। लेकिन आपके साथ कौन कौन हंस रहा है, अब अकेला तो हंस ही नहीं सकते हो, 4-5 लोग रहेगा, सब जोर जोर से हंस रहे हो, जोर जोर से हंस रहे हो। हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, यू आर एंजॉयिंग एवरी मोमेंट। आंख से आंसू बह रहे हैं। आपने क्या कपड़ा पहना था, उन लोगों ने क्या कपड़ा पहना था, सबका चेहरा देखो। यू आर एंजॉयिंग, यू आर एंजॉयिंग, यू आर एट द पीक, you are at the peak, you are at the peak, you are at the peak. Happy, 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 just happy, happy, happy. First, join the first and the third finger. Join the first and the third finger. Join the first and the third finger of any hand you will do. You are anchoring the happiness in your hand with your fingers. You are anchored the happiness. बस छोड़ दो, फिंगर को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, आंख मत खोलना, आंख मत खोलना, आंख मत खोलना। Again imagine that scene, imagine that scene. Again you are happy, you are happy. जोर जोर से हंस रहे हो, जोर जोर से हंस रहे हो, जोर जोर से हंस रहे हो। Again join the first and third finger. Again join both the fingers, both the fingers, both the fingers. Tight, 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 tight. और वो सीन भी दिमाग में आ जाना चाहिए, सीन भी दिमाग में आ जाना चाहिए, सीन भी दिमाग में आ रहा है। जोर जोर से हंस रहे हो, जोर जोर से ठास भरी हंसी, ठास भरी हंसी। जोर से leave the finger, leave the finger, leave the finger, leave the finger. But slowly open your eyes. 1, 2, 3, 4, 5. Open your eyes. Relax. कैसा लगा ये? Join the first and third finger fast. Join the finger, join the finger, join the finger. देखो वो सीन याद आ रहा है, देखो वो सीन याद आ रहा है। Join the finger, वो सीन याद आना चाहिए, याद आना चाहिए। फिर एकदम पीक में अपन एंकर किया जाएगा ना, तो ये सीन आना चाहिए। तो ट्राई करो करते हैं काम। ये जो अपन राइट ब्रेन का बात कर रहे हैं, आज बेटा गणेश जी गुस्से में आ गए, कितना चोरी करते हैं आदमी। पापा ने बोला, मैं जिसके घर में बच्चे नहीं उनका बात कर रहा हूँ। मेरे घर में वो 3:30 से जो होती है, रोज स्कूल जाते समय रोती, 7:15 को निकलना पड़ता स्कूल, टाइमिंग है। रोज सुबह उठेगा, कोई भी कोई फिर रो के बाद फिर रो के स्कूल में रोज। फिर मैं उसका माँ को बोला, अरे मेरा भाऊ गो के काम कर, रात को सोते समय उसके कान में बोल। और पूरा सो के होने के बाद कौन बच्ची है उसके कान में बोल कि तो हंसती जाएगी, मस्ती जाएगी, यू गो वेरी लाफिंगली स्माइलिंगली, अच्छे होकर जाएगी, खाती जाएगी। थर्ड डे से वो हंसती जाना चलो, क्योंकि उसका राइट ब्रेन में वायरिंग कर दिया हम लोगों ने कि तो हंसती जाएगा। फंसाया बच्चे, ऐसे बच्चों में बहुत इफेक्टिव होता है। सोने के बाद सोने के बाद, बच्चा सोने के बाद बच्चा हिलेगा भैया, बच्चा हिलेगा तो समझ जाने की आपका सबकॉन्शियस माइंड में सुन रहा है। ये बच्चे में तुम लोग ट्राई कर सकते हो, यू विल गेट द रिजल्ट। आलू नहीं खाता रहेगा, केला नहीं खाता रहेगा, क्यों मार मार के करने का, बोलो उसके कान में, अभी दिखाएगा और गारंटी मेरा।
समझा कि नहीं? बड़ों पे ट्राई मत कर, बड़ों पे ट्राई मत करना। खास करके वाइफ को बोलता हूँ पति के बाजू में खाने के कैसे तू दारू नहीं पिएगा, दारू नहीं पिएगा, ट्राई मत करना। फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाटएवर हैपेंस इन योर फैमिली लाइफ। खत्म करते हैं, कैलाश जी खत्म। एनी क्वेश्चंस? दो प्रकार के लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं होता। रिलैक्स हो गया। लेफ्ट ब्रेन ऑटोमेटिक, लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड पार्ट ऑफ बॉडी, वो रूटीन है। आप खाना खाते हो, ब्रश करते हो, सब लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी। अभी मैं पूछा तो ऐसे याद आया ना ऐसा। अगर लेफ्ट ब्रेन डेवलप करना है तो लेफ्ट से ब्रश करना ट्राई करके देखो। अभी चाय मिलेगा तो लेफ्ट सबको लेफ्ट हाथ में पकड़ के ट्राई करके देखो ना। We are used to right hand, no. We are used to right hand. Start with small things. कप लेफ्ट से पकड़ो, ब्रश लेफ्ट से करो, और बाद में गार्गल करो। बाद में लास्ट मोमेंट में लेफ्ट ब्रेन बोलेगा, जो कोने का दांत है ना वो बच गया है, फिर अपन राइट से वापस करेगा, मतलब तुम हार गए। चलो द वॉर। मेरा जो सी है गुरु, मेरा मेरी 80 ईयर ओल्ड अग्रवाल करती, उनके घर पे लास्ट मंथ गया था खाने, तो ईटिंग विद द लेफ्ट हैंड। तो अग्रवाल जी क्या होगा, अब लेफ्ट से खाते हो। लेफ्ट से खाने से दोनों ब्रेन डेवलप होता है, इसलिए एट द एज ऑफ 80। बच्चे भी खेलते हुए बॉल ऐसा ऐसा नहीं कर रहे, दोनों हाथ से खेलने लगता है। बस मेरे कैलाश जी का दिमाग मेरे दिमाग में घूम रहा है। ये एंकरिंग है, रिफ्रेमिंग है, मिररिंग है, सक्सेस कोलाज है। ये मेरा बुक है लाइफ मेड सिंपल, 270 रुपीज में मिलेगा, अभी बात खरीद लेना, जिंदगी सुधर जाएगा शायद। एंड आई बिलीव, देखो लाइफ का मतलब फुल फॉर्म क्या है, लिव इन फियर एवरी डे और लिव इन फन एवरी डे, मुझे भी जीना चाहिए यार। फिर मेरा एक सेमिनार है सैटरडे को, हो सके तो आ जाना, 43,450 रुपीज। अगली सैटरडे को मेरा डोर में खत्म। लो 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, क्योंकि एंडिंग पंच अच्छा होना चाहिए ना। तीन भगवान लोग फाइटिंग कर रहे हैं, कि भगवान बोलते हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि हमने आदमी को हाथ दिया, पैर दिया, कान दिया, अक्ल दिया, पैसा दिया, बंगला दिया, सब कुछ दे दिया, कोने में खाना दिया, लास्ट में पूरी बच्चा हैप्पीनेस तो वो भी दे देंगे। एक भगवान बोलते नहीं नहीं, ऑब्जेक्शन लेता है, अगर हम लोग हैप्पीनेस भी दे देगा ना तो आदमी अपना भूल जाएगा, उसको कमीनापन भी बुद्धि है, वो आपको भूल जाएगा, तो बाकी भगवान को दे देंगे। आपको देना तो चाहिए, अपना बच्चा है यार, इट शुड गिव देम हैप्पीनेस। तो आज एग्री करते हो, हैप्पीनेस भी दे देंगे, लेकिन इजीली नहीं देंगे, उसको खोज भी तो बाद में देंगे हम। तो सोचते कहाँ देखने, कहाँ छुपाएगा। मेरा भगवान बोलते हैं अपन एक तो फादर्स इन द स्काई में छुपा देंगे। तो दूसरा भगवान बोलते हैं अक्ल है लोगों को, हम उसको अक्ल दिया है ना, और अक्ल बनाया सीधे मिल जाएगा उसको, तो इजीली खोज। आप सोचते हैं दूसरा भगवान बोलते हैं कि हम उसको एकदम नदिया के एकदम दरी नीचे छुपा देंगे, एट द डीपेस्ट सी। और अरे यार उसको अक्ल दिया, वो संभवित बनाएगा और धीरे धीरे लेके आएगा यार। आप सोचते और बाद में जो उसमें बाइसस्ट भगवान बोलते काम करते, अपन उसको फूल करेंगे, चीट करेंगे, अपन हैप्पीनेस उसके अंदर छुपा देंगे। वो आंख खोल के पूरा बाहर घूमता बैठेगा, तो उसको कभी हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। ये जिस दिन वो आंख बंद करके अंदर जाकेगा ना, he will find happiness. I really थैंक यू भैया साहब। नहीं सर, आपको सुनने के लिए इतने हैं, और हमारी इच्छा तो बहुत थी कि अभी आपको सुनते ही जाएं, लेकिन समय के अभाव के कारण, और इडली भी ठंडा नहीं, इडली अभी नहीं है, वो 11 बजे के बाद है। अभी ये बिफोर वोट ऑफ थैंक्स हमारा जो मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप है, इसका हम इनॉग्रेशन करेंगे, एंड वी आर रिक्वेस्ट ऑल टू कम देयर, एंड विद इन 10 minutes विल बी सिंबल हियर फॉर नेक्स्ट सेशन। देयर आफ्टर ब्रेकफास्ट विल बी स्टार्ट, और जिनको भी ब्लड देना है उनसे रिक्वेस्ट है, एक एक करके अगर ब्लड अगर देते जाएंगे तो लास्ट आवर में भीड़ नहीं होगी। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ब्लड डोनेट करें। अगर आप
ब्लड देते हैं तो आपका पुराना ब्लड जाते ही आपके शरीर में नया खून आता है, जो आपको नई बुद्धि और नई प्रेरणा देता है। और एक आपके बोतल से एक लाइफ बचती है। तो ब्लड डोनेट जरूर करें, क्योंकि रक्तदान महादान है। तो सबसे आई रिक्वेस्ट एवरीवन who come here to please donate your blood if you are capable। तो एक 10 मिनट का खाली हम ब्रेक लेते हैं। ये हमारी WIRC की फर्स्ट लेडी मिसेज केतन सैयद जी, बीना मैडम यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ में चल करके ब्लड डोनेशन कैंप का इनॉग्रेशन करें। हमारी RCM पिंकी जी केदिया का मैं ऑल्सो स्वागत करता हूँ। तो ओनली 10 मिनट्स ब्रेक फॉर इनॉग्रेशन ऑफ आवर मेडिकल कैंप, देन वी विल बी कम हियर फॉर नेक्स्ट सेशन। वो भी काफी जोरदार होने वाला है। डोंट गो एनीवेयर प्लीज। नाउ प्लीज vote of thanks. I request our deputy convener to give a vote of thanks. Good morning, everyone. Thank you, Katarka ji. Thank you, Ramnath Iyer ji, for refreshing session on soft skills neuro-linguistic program for improving efficiency shared with us. On behalf of JB Nagar Study Circle, I propose a hearty vote of thanks for our learned speaker, and also would like to thank all members and admin staff for their efforts. So you all have got the chronology of the today's events. So I mean, breakfast will be after 11. So 5 to 10 minutes break, so that we can inaugurate our blood donation and a free health checkup campaign. And request all of you, I mean, one by one, if you can do the blood donation and take the benefit of free health checkup, so that there will be no rush, and it will help you to maintain the decorum of that and the maintenance of this administrative so that there will not no rush and there is no queue. Thank you. मेरा कार और बुखार मिलेगा। लैपटॉप गिरने वाला था, गिर गया देख। हस्बैंड बोला कि दारू मत पी। ये बोलो ना, बेटा हो जाएगा, तो दारू रिकॉर्ड किया किसी को चलेगा। नहीं